Hi all, this video is for standard 7th science. This is the first part of this chapter, chapter 1, nutrition in plants. We are going to learn in first part about the chapter mode of nutrition, autotrophic nutrition, photosynthesis, which is very important. हम लोग पहले से ही सीखते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में इन स्टैंडर्ड 4th, 5th, 6th, now in 7th also we are going to learn, but in detail. Then breathing organs. What are the breathing organs in plant? There will be two parts in this video. This is the first part. So in first part we are going to learn about breathing organs about plant. ठीक है? I am writing here plant. So in first video we are going to cover these 4 topics. ये first video में हम ये सारे topics cover करेंगे. Then second video में भी हम बाकी के जो topics हैं वो cover करेंगे. You have to go through the textbook. We will prepare the video on the basis of textbook only. Hi all, this video is for standard 7th chapter 1. Chapter name is nutrition in plant. So we are going to learn in this chapter so many points. First of all, you have to open your notebook so that the important point we have to captured in our syllabus or in our chapter nutrition in plant. So first chapter is nutrition in plant. First I will read your book, textbook, and explain you each and every point. See, all the living organism. सबसे पहले we need to understand about the living organism. What are the living organism? One is plant and animal. So plant and animal, for them what we required? Food. The organism need to take food. अब जो organism है they need to take food. अब वो food कहाँ से आएगा, कैसे आएगा और उस food से फ़ायदे क्या हैं? What are the points by which the plant has to grow? ये सारे point हम लोग इसमें discuss करेंगे. तो सबसे पहला point है to obtain energy. क्या होता है जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर एक energy आता है. Already so many things we have studied in our class 6, but I am going to revise the same in the standard 7, जिससे आपको क्या है easily it will be a recap in your mind to understand the point. तो सबसे पहला point है to obtain energy. Second point है to obtain materials for growth. To obtain materials for repair of damaged part of the body. जब हम खाना खाएंगे तो क्या होगा? वी आर गेटिंग मोर एंड मोर प्रोटीन, वी आर गेटिंग मोर एंड मोर कार्बोहाइड्रेट. जैसे स्टैंडर्ड 6 में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि बाय ईटिंग फूड वी आर गेटिंग कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, देन वी आर गेटिंग मिनरल्स, विटामिन्स. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर होती हैं. एंड हाउ दीज विटामिन्स एंड मिनरल्स कम्स फ्रॉम वेयर? फ्रॉम फूड ओनली. तो हम आगे चलते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो यू कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल बाय राइटिंग दीज सेंटेंसेस. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ठीक है. Plants can make their own food, but animals cannot make food themselves. They obtain food from plants or other animals that eat plants. We will now discuss the various modes of nutrition in organism. अब देखो कई बार क्या होता है, कुछ प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, जो हम आगे अभी जाके we will discuss on these points. और कई एनिमल्स जो होते हैं they cannot make their food own. आपने कभी भी देखा है किसी भी जानवर को अपना खाना बनाते हुए? वो नहीं बना सकते हैं. पर प्लांट में क्या होता है कि कई प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं और कई प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना नहीं पाते हैं।
तो अभी आगे चल के हम देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी जो न्यूट्रिशन है वो कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द वर्ड इटसेल्फ इज टू बी एक्सप्लेन। ऑटो मीन्स क्या है, खुद से। हेट्रो, ठीक है, हेट्रो में क्या होता है, दिस इज समथिंग विच डिपेंड ऑन अदर। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अभी हम रीड करेंगे कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक इट फूड इटसेल्फ फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी जहाँ पे प्लांट खुद से अपना खाना बना लेता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक इट्स फूड इटसेल्फ फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी जहाँ पे भी प्लांट अपना खाना खुद से बना लेता है उसे हम बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं, देखो एक बड़ा अच्छा सा फोटोग्राफ्स है, यू हैव टू सी इट वेरी केयरफुली। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हम जाके आगे डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, बट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप फोटोग्राफ्स में आप देख रहे हो एक प्लांट है, बाय लुकिंग द फ्लावर्स कलर इट सीम्स दैट ये सनफ्लावर है ना, जिसको सूर्यमुखी बोलते हैं हिंदी में। अब देखो इसमें दिख रहा है आपको एक सनलाइट, ठीक है, तो सनलाइट के पास एक एरो बना हुआ है, दैट एरो इंडिकेट्स कि प्लांट इज टेकिंग द सनलाइट, ठीक है। अब सनलाइट से क्या होता है हम देखेंगे आगे। फिर यहाँ पे देखो एक एरो बना हुआ है जहाँ से कि कार्बन डाइऑक्साइड भी वो ले रहा है। बट ऑलरेडी आपको मैंने 6 में या 5th स्टैंडर्ड में यू हैव गॉन थ्रू द सेम कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। आप सबको पता है कि प्लांट दे आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द डे टाइम एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो, ठीक है। और नाइट में क्या होता है, द सेम थिंग्स इज बीइंग अपोजिट इन डन अपोजिट बाय द प्लांट। नाइट में क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। इसके लिए दिस इज टू डेंजरस फॉर ह्यूमन टू स्लीप अंडर द ट्री, ठीक है। जैसे आपको बताया गया था पहले भी साइंस में कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नॉट गुड एनफ टू इनहेल इट, बिकॉज इन ह्यूमन बींग्स वी आर ऑल्सो रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे ये फोटोग्राफ्स है, और फिर देखो इसमें से एक एरो बना हुआ है जो ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम जब प्लांटेशंस करते हैं, प्लांट का केयर करते हैं, प्लांट का जब ग्रो होता है तो हमको वो ऑक्सीजन देते हैं, दैट इज़ इन ए फ्रेश क्वालिटी। आप सबको पता ही है कि व्हाट आर द क्राइसिस इज गोइंग ऑन इन द इंटायर वर्ल्ड फॉर द ऑक्सीजन। तो इट इज़ ए वेरी गुड लेसन फॉर अस टू हम हमारे जन्मदिन के अवसर पे एक प्लांट अगर हम लगाते हैं ऑन ए अप्रोप्रिएट प्लेस, प्रॉपर प्लेस पे अगर हम लगाते हैं प्लांट को, तो दिस इज़ गुड फॉर अस। फिर क्या होता है, एक एरो बना हुआ है जहाँ पे शुगर, यानी प्लांट से हमको शुगर भी मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने ऑलरेडी रीड किया है, फिर से मैं रीड करता हूँ। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स फूड इटसेल्फ फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये बहुत अच्छा डिफिनीशन है विच यू नीड टू राइट इन द फेयर बुक, और इसको आप अच्छे से लर्न करोगे। अब आप पहले क्वेश्चन खुद से बना सकते हो, यू कैन मेक योर सेल्फ क्वेश्चन आंसर, यू कैन राइट व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, और उसके नीचे आप आंसर लिख सकते हो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक इट्स फूड इटसेल्फ फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आगे रीड कर देता हूँ एज पर योर टेक्स्ट बुक। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो पता चल गया कि फ्रॉम वेयर दे प्रिपेयर फूड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से इनके प्रेजेंस में द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। देयर इज ए वर्ड, देयर इज ए साइंटिफिक वर्ड फॉर क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। सनलाइट तो सबको पता ही है, बट क्लोरोफिल हमको लर्न करना पड़ेगा। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट, देखो ध्यान से सुनना, देयर इज ए वर्ड ग्रीन प्लांट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, बिकॉज प्लांट अलग अलग कलर के होते हैं, ग्रीन होता है, येलो कलर के भी प्लांट होते हैं, लाइट येलो के प्लांट्स होते हैं, वाइट कलर के भी प्लांट्स होते हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ग्रीन प्लांट, ठीक है। ग्रीन प्लांट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फ्रॉम देमसेल्व्स एज वेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन,
आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स। द ग्रीन पिगमेंट, अब देखो अगेन देयर इज ए साइंस वर्ड, द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज नेसेसरी to absorb energy from sunlight required for making food for photosynthesis। अब देखो ये वर्ड आ गया आप लोगों को। अब ये कहीं भी पूछा जाएगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने को इजी रहेंगे। हम इसको थोड़ा डिटेल में जाके नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं डिटेल में जाके कि क्या है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट प्रोड्यूस ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज एज फूड। जो ग्लूकोज है वो प्रोड्यूस होता है। द ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड स्टार्च। ठीक है, ये स्टार्च में कन्वर्ट होता है। दिस स्टार्च गेट स्टोर्ड एज फूड इन द वेरियस प्लांट्स ऑफ प्लांट इंक्लूड लीव्स। ठीक है, इंक्लूडिंग लीव्स। अब देखो ये एक्टिविटी है, इफ यू वांट यू कैन डू इट, बट इफ यू वांट टू अवॉइड दिस इज ओके। हम पहले ये समझ लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है, विद स्पेलिंग यू हैव टू लर्न इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर साइंस एंड एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू द सेम। इसमें एक रिएक्शंस भी दिया हुआ है, तो आपको क्या है कि यू हैव टू राइट 5 to 10 टाइम्स द रिएक्शंस, तो इट विल बी क्लियर फॉर यू। बिल्कुल सिंपल है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जैसे कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, दीज आर द मेन सोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बाय यूजिंग सनलाइट। ठीक है, सनलाइट तो आ ही रहा है। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफाइल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो यानी कि हमको पता है कि 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो जरूरी है, एक तो सनलाइट, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा वाटर। अगर इसमें से कोई भी एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो हमको सबसे पहले जानना क्या होता है कि हाउ प्लांट्स आर मेकिंग देयर ओन फूड। ठीक है, द प्लांट्स आर मेकिंग देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो यहाँ रिएक्शंस जो दिया हुआ है नीचे, इक्वेशंस दिए हुए हैं आपके कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस का एक सिंबल दिया हुआ है, वाटर, बाद में दिया है सनलाइट और नीचे लिखा है क्लोरोफाइल, फिर बाद में लिखा है ग्लूकोज, फिर लिखा है ऑक्सीजन। अब देखो नीचे सबके नीचे कुछ कुछ लिखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम एयर, बट ऑब्वियस है द कार्बन डाइऑक्साइड वी आर गेटिंग फ्रॉम एयर ओनली। ठीक है, फिर वाटर फ्रॉम सॉइल। देखो प्लांट है तो उसको वाटर कहाँ से आएगा? या तो हम लोग ऊपर से डालेंगे उसको, यानी तो प्लांट जो है वो मिट्टी से रूट के थ्रू दे आर टेकिंग वाटर इन देयर बॉडी। देखो सनलाइट और नीचे लिखा है क्लोरोफाइल, यानी ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, फिर क्या होगा? ग्लूकोज, अब इसके नीचे लिखा है एक कार्बोहाइड्रेट फूड ये बनता है, प्लस ऑक्सीजन गोज इनटू एयर और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये बड़ा सिंपल है फोटोसिंथेसिस। आपसे कोई भी पूछेगा तो आप बता सकते हो कि एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर प्लांट अपना खाना बनाता है, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट और क्लोरोफिल, बट फॉर ग्रीन प्लांट। ठीक है, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि दिस इज फॉर ग्रीन प्लांट। अब एक देखो एक और पॉइंट आ रहा है, कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफाइल। अब देखो क्लोरोफाइल का मैंने आपको बताया ही, पहले भी बताया, क्लोरोफाइल ट्रैप द लाइट एनर्जी टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफाइल क्या करता है? वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, यानी कि खींचता है। ठीक है, ट्रैप करता है और उसको खींचता है। तो हमको ये समझना है थोड़ा सा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, एज लाइट इंस्टेंटली इज इंक्रीज्ड, the rate of photosynthesis increase almost linearly. At higher rate intensity, the rate of photosynthesis becomes limiting. अब देखो क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट होना चाहिए। तो हमारे यहाँ रेगुलर सनलाइट होता ही है,
वी डोंट हैव द शॉर्टेज ऑफ सनलाइट, बट कई बार क्या होता है कि क्लाउडी एयर्स होते हैं, बारिश बहुत टाइम तक होती रहती है, ठीक है। बट देखो यहाँ पे क्या है कि एज द लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, जैसे अगर लाइट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज ऑलमोस्ट लीनियरली, तो वो क्या थोड़ा बढ़ता है। एट हायर लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स लिमिटिंग। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होगा तो क्या होता है, प्लांट को आपने देखा होगा उसके अंदर क्या होता है कि वाटर जो रिसोर्सेज है वो कम होने लगते हैं, क्योंकि जो सन का रे है उसका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है। यानी ना ही ज़्यादा सन का रे होना चाहिए, मतलब प्लांट मुरझा रहा है, प्लांट सूख रहा है, तो दिस थिंग्स इज हैपनिंग, ठीक है। अब नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट का हम देखते हैं। द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द विजिबल लाइट आर मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है। द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द विजिबल लाइट आर most effective for photosynthesis. If the light of some other color is made to fall on the plant, then the rate of photosynthesis decrease. अब इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस जो है वो कम हो जाएगा अगर नेचर ऑफ लाइट बराबर नहीं होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टेम्परेचर। द टेम्परेचर डज नॉट इफेक्ट द लाइट रिएक्शन। अब जो टेम्परेचर है वो लाइट की रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता है। आफ्टर द डार्क reaction markedly, the effect of temperature on photosynthesis will vary plant to plant. अब कोई प्लांट होता है कि सन के रे की उसको ज़रूरत होती है, किसी को ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मनी प्लांट, तो इन केस ऑफ मनी प्लांट व्हाट वी डू, हम उसके ऊपर एक शेड डालते हैं या उसको थोड़ा सा ऐसा रखते हैं कि लाइट का इफेक्ट थोड़ा, मतलब सन का रे अगर ज़्यादा तेज़ है तो क्या होता है, प्लांट दे नेवर ग्रो, बारिश ज़्यादा होती है तो ख़राब होने लगता है। तो वी केयर अबाउट दिस काइंड ऑफ प्लांट। जैसे पान है, देखा होगा आपने, पान के लीफ आपने देखे होंगे। पान इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू, उसकी जो फार्मिंग होती है, उसका जो एग्रीकल्चर प्रोसेस होता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो पान के प्लांट के ऊपर पूरे सेड्स बने होते हैं, ठीक है। उनको धूप, सन का रे बहुत कम चाहिए होता है। तो कई प्लांट होते हैं जिनको सन के रे की ज़रूरत होती है, कई को ज़रूरत नहीं होती है और कई को कम होती है। द एबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, poor ability of CO2 lower the extent rate of photosynthesis। बट ऑब्वियस है अगर CO2 का जो लेवल है वो अगर कम हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट ऑफ रेशियो है वो भी कम हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अब वाटर में क्या होता है कि अगर आपको पता ही है वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर प्लांट, तो पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ H2O लोअर द एक्सटेंट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर पानी का जो एबिलिटी है वो अगर कम हो जाता है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, ठीक है। प्लांट के लिए सर्वाइवल बहुत दिक्कत हो जाता है। अब देखो एक्टिविटी 2 है, दिस इज़ वेरी इजी, और मैं चाहूँगा कि आप सब कर सकते हो अपने घर में। यू कैन टेक ए पॉट ऑफ एनीवन, कोई प्लास्टिक के डब्बे घर में पड़े होंगे या कोई ग्लास पड़ा होगा, तो उसके अंदर थोड़ा सा आप मिट्टी डाल सकते हो। मिट्टी डालने के बाद आप जो है ना, देखो यहाँ पे लिखा है मटेरियल रिक्वायर्ड, एक प्लॉटेड प्लांट चाहिए, एक प्लांट कोई ऑलरेडी थोड़ा सा ग्रो अप प्लांट चाहिए, एल्यूमिनियम फॉयल चाहिए, इथाइल अल्कोहल चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बीकर चाहिए। तो इसको आप रीड करके इजीली दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन डू एट होम, ठीक है। जिससे आपको पता चल जाएगा बाय दिस ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पोर्शन ऑफ द लीव एक्सपोज्ड टू सन टर्न्स ब्लू और ब्लू ब्लैक, द पोर्शन विच वॉज कवर्ड विद द अल्यूमिनियम फॉइल डज नॉट शो एनी चेंज इन कलर। यानी जो अल्यूमिनियम फॉइल है वो क्या करता है, वो सन के रे को ऑब्जर्व कर लेता है। तो सन के रे को ऑब्जर्व कर लेगा तो क्या होगा, द सन रे विल नॉट रीच टू द प्लांट। तो अगर आप जैसे देखो कोई प्लांट है बाहर आपने गार्डन में लगा हुआ है, उसी प्लांट के पॉट को इफ़ यू आर टेकिंग इनसाइड योर हाउस एंड कीपिंग समवेयर, तो बाय द इफ द प्लांट इज नॉट गेटिंग सनलाइट, तो क्या होगा, जो प्लांट है उसका ग्रोथ भी कम होगा और उसके जो कलर हैं दे आर गोइंग टू बी लिटिल बिट चेंज, वो कलर धीरे धीरे ग्रीन से लाइट ग्रीन हो जाएंगे। अब देखो कंक्लूजन क्या निकलता है बाय पुटिंग दिस एफर्ट्स एक्टिविटी। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इस चीज़ से पता चलता है
कि सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब देखो आपके बुक्स में, योर बुक इज़ वेरी गुड बिकॉज लॉट ऑफ पॉइंट्स आर बीइंग मेंशन इन दिस, और आप सबको दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द सेम, ठीक है, और इसको लर्न कर लो बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर फर्दर क्लासेस। द टर्म, देखो फैक्ट फाइल हर चैप्टर में है और फैक्ट फाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट which is going to be asked in the your examinations also in the form of MCQ. The term photosynthesis was coined by Charles Richard Barnes in 1883. अब आपसे देखो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस, देखो पता सबको सब कुछ होता है, पर someone has to take the lead and do the same. अब ये जो साइंटिस्ट हैं चार्ल्स रेडिस बार्नेस, इन्होंने 1883 में फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन लीव्स हैविंग कलर अदर देन ग्रीन, ये चीज़ का इन्होंने रिसर्च किया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इन 1883 हु वाज द पर्सन बिहाइंड दिस। अब एक और टॉपिक वी हैव टू कवर इन दिस वीडियो कि ब्रीदिंग ऑर्गन्स फॉर द प्लांट। ब्रीदिंग ऑर्गन्स का आपको पता ही है कि जो प्लांट के अंदर या हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है जो हमको सांस लेने में और छोड़ने में मदद करता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग ऑर्गन्स। अब जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स है वो क्या है, वो हम इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर थ्रू द टिनी पोरिस। अब देखो बात यहाँ पे आती है कि प्लांट जो है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो एयर से लेता है, ठीक है। तो कहाँ से लेता है, तो टिनी पोरिस। अब प्रैक्टिकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट इज़ टिनी पोरिस, यू हैव टू गो इन गार्डन और टेक ए लीफ ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट, छोटा सा कोई प्लांट है उसको आप तोड़िए, उसको आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, उसके लीफ को आप अच्छे से देखिए, उसके पत्ते को अच्छे से देखिए, तो यू विल सी लॉट ऑफ थिंग्स विल बी देयर। आप प्लांट को अच्छे से देखिए। द प्लांट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू आवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। हम डिटेल में और भी चैप्टर्स हमारे इस बुक में हैं, तो दो चैप्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट द प्लांट culture and plant growth and plant nature, plant performance, how we are getting things from plant, तो ये हमको थोड़ा सा समझना है and this is very interesting। तो जो टीनी पोरेस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। अब यहाँ पे फिर से ये एक वर्ड आया, इसको आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। जो टीनी पोरेस होते हैं इनको हम बोलते हैं स्टोमाटा। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव। अब ये जो स्टोमाटा है वो कहाँ रहता है, सरफेस ऑफ लीव, पत्ते के लेयर पे ये स्टोमाटा होता है। देखो वीडियो को आपको एक बात से नहीं होगा, यू हैव टू गो थ्रू द वीडियो 2-3 टाइम्स। जैसे आप एक वीडियो को 2 बार 3 बार जब आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं। मैं रीड तो आपके बुक्स का ही कर रहा हूँ, पर मैं आपको थोड़ा समझाना भी चाहता हूँ, और ये तब होगा जब थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप गार्डन में जाके एक प्लांट को ले लोगे। यू टेक ए प्लांट इन योर हैंड, ठीक है, छोटा प्लांट, और उसके जो लीफ है उसको बड़े ध्यान से देखो। ऐसे नहीं दिख पा रहा है तो सन के सामने रख के उसको देखो, तो उसके अंदर आपको दिखेंगे छोटे 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 पोरेस बने होते हैं, ठीक है, पोरेस बने होते हैं। तो उसी पोरेस को हम बोलते हैं स्टोमाटा। ईच स्टोमाटा इज बाउंडेड बाई 2 हाफ मून शेप गार्ड सेल। द गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमा when there is enough light and water। जब ज़्यादा पानी और सूरज होता है तो उसके जो स्टोमा है वो ओपन हो जाते हैं। द गार्ड सेल स्वेल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमा, ठीक है। ये फोटोग्राफ्स हम आगे देखेंगे। when there is enough light and water the guard cell swell up and curve away from each other, thus opening the stomata. This allow carbon dioxide to enter the cell of the leaf. The oxygen was produced in the leaves during photosynthesis goes out into air through the same stomal process। अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोरेस, इसको बोलेंगे हम लोग स्टोमेटल पोरेस। देखो इसमें ये फोटोग्राफ्स दिख रहा है आप लोगों को, मैं थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको कि आपको थोड़ा सा समझ में आए। स्टोमाटा विथ गार्ड सेल। अब जो लीव आप कोई लीव लेते हो एंड व्हेन यू सी इट वेरी क्लोजली, वैसे तो यू विल सी ऑन माइक्रोस्कोप, बट इफ़ यू ट्राई यू कैन सी इट, नो इशू। स्टोमाटा विथ गार्ड सेल, जो पहला फोटोग्राफ्स है उसमें आप देखिए स्टोमाटा विथ गार्ड सेल, वो गार्ड सेल के अंदर होता है।
उसके अंदर देखो कि ए पेयर ऑफ गार्ड सेल्स लिखा हुआ है, यानी कि रेड कलर से एक राउंड किया हुआ है, ठीक है, ए पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, ठीक है। तो ये जो गार्ड सेल्स है, जब लाइट और वाटर मिलता है इनको तो ये ओपन हो जाते हैं, दैट यूज्ड टू बी ओपन। फिर क्या, क्लोज्ड स्टोमाटा, और जो स्टोमाटा है वो क्लोज हो जाता है। और फिर क्या होता है, देखिए ये स्टोमाटा का फोटोग्राफ्स है, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ओपन स्टोमाटा, देखो इसके जो होल है ना वो ओपन हो चुके हैं। तो ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, इसके अंदर बहुत बड़ा मेजर रोल होता है स्टोमाटा का। एंड ये स्टोमाटा के हिसाब से ही प्लांट का ग्रोथ होता है। जैसे हम बॉडी में बोलते हैं कि हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही प्लांट के अंदर प्लांट के भी सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए वी हैव टू लर्न द लेसन कि हमको प्लांट का केयर करना चाहिए और कोई भी प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो हम आज इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन राइट मी डायरेक्टली ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। चलो, थैंक यू। होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमने वीडियो प्रिपरेशंस पे भी ध्यान दिया हुआ है, और वो हमने इस तरीके से किया हुआ है कि आपको एक एक कंटेंट क्लियर हो। अब आपको उस वीडियो कंटेंट से जो डिफिकल्ट वर्ड है, जो आपको दिक्कत हो रही है समझने में, उसको भी आप फिल्टर कर लेना। वीडियो समझ में अगर कम आता है तो उसको दोबारा से देख लेना, ठीक है। इफ स्टिल यू आर हैविंग डाउट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।